Hello students, today we would be taking start of our new topic, that is mutation. So first we have to define that what is mutation. Any change in the structure of genetic material is called as mutation. The mutation it may result due to change either in the gene or chromosome itself. जीन में या क्रोमोसोम में अगर चेंज हो जाए तो we do call it as mutation. Now types of mutation. If we just want to generally classify the types of mutation, so that may be gene mutation where the allele of a gene is changed, and chromosomal mutation where the segment of chromosome or the whole chromosome or the entire sets of chromosome change. So we would be studying these in detail. First of all, we must know about the type of mutation on the basis of cell which is involved. So on the basis of cell which is involved, the mutation may be somatic mutation, germinal mutation, and de novo mutation. Now, as name indicate that somatic mutation is that mutation which is basically occurring within the somatic tissue or cell. Somatic tissue or cell, okay? So such type of mutation wouldn't be transmitted to the progeny. ऐसा म्यूटेशन के जो सोमैटिक सेल में हो जाए या सोमैटिक टिश्यू में, तो वो प्रोजनी में या ऑस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होता. जर्मिनल म्यूटेशन इट्स दैट विच इज ऑकरिंग विद इन द जर्म टिश्यू. और इस टाइप के म्यूटेशन में वी से के दिस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑस्प्रिंग या टू द प्रोजनी, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग द जर्म सेल. वो म्यूटेशन जो जर्म सेल को या जर्म टिश्यू को अफेक्ट करती हैं, तो दैट इज ट्रांसमिटेड टू द प्रोजनी और टू द ऑफस्प्रिंग. देन de novo mutation or new mutation. This type of mutation occur just after fertilization of an egg. In this case, the parents, they are normal, but we are saying that whenever the sperm and ova, they are getting fused, so what's the situation that such type of mutation occur at that time. तो अब जिस zygote में mutation हो गया है, अब इस developing zygote से जो individual बनेगा, तो that would be also carrying the abnormality. Even in the developmental stages of the embryo, they would be carrying such abnormality, and we call them as congenital abnormality, which are birth-related defects. Mode of origin of mutation. If we just see mode of origin of mutation, so that may be spontaneous. It is also called as natural, and second one is induced mutation. तो spontaneous mutation वो mutation होता है जिसको हम natural भी कहते हैं, जिसका source known नहीं होता, the source of which is unknown, and it's occurring suddenly. Induced mutation is that type of mutation which is not occurring naturally, rather it is induced artificially in living organism by exposing them to abnormal environments such as radiation, जिस तरह अगर X-rays, beside this certain physical condition, for example temperature, and certain chemicals even. For example, if we want to induce mutation in plant cell, so we do treat that with colchicine. Then types of mutation on the basis of site. Mutation, they are of two types on the basis of where mutation occur and to which extent it occur. So point mutation and chromosomal mutation, broadly we classify them into point mutation and chromosomal mutation. Let's see, first we discuss about the point mutation. Point mutation is that when the heritable alteration occur in a very small segment of DNA molecule, that is a single nucleotide or nucleotide pair, and then this type of mutation they are called as point mutation. इसको हम micro mutation भी कह सकते हैं. The point mutation may occur due to the following type of subnucleotide change in the DNA and RNA. इसलिए इस point mutation को हम further sub classify करते हैं deletion mutation, substitution mutation और insertion or
एडिशन म्यूटेशन में। लेट्स सी फर्स्ट वन इज, अगर हम सबसे पहले डायग्राम की तरफ आ जाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, राइट। अच्छा, फर्स्ट वन को अगर हम ले लें डिलीशन म्यूटेशन में, आप देखते हैं कि दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के मॉलिक्यूल का ये नॉर्मल ओरिजिनल सीक्वेंस है। अगर हम फर्दर इसको देखें कि एडिशन या डिलीशन या इंसर्शन वगैरह कैसे होती हैं, तो सबसे पहले हम डिलीशन को ले लेते हैं। डिलीशन म्यूटेशन में क्या है कि ये हमारे पास नॉर्मल ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है। अब अगर इस नॉर्मल ओरिजिनल में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड हट जाए, डिलीट हो जाए, तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिलीशन म्यूटेशन। आप देख सकते हैं कि अबव जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसमें थायमीन, साइटोसिन के बाद थायमीन प्रेजेंट है, लेकिन यू कैन सी डिलीशन म्यूटेशन जब हो गई है, डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, तो यहाँ से थायमीन जो है वो स्किप कर गया है, डिलीट हो गया है। दूसरे म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में अगर आप देखें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में, तो इन दिस केस व्हाट्स द सिचुएशन कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो उस नॉर्मल सीक्वेंस में या ओरिजिनल सीक्वेंस में प्रेजेंट है डीएनए के, तो दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर व्हाट? दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड या बेस। सपोज यहाँ पे आप देखते हैं कि थायमीन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन, और यहाँ पे म्यूटेटेड फ्रेगमेंट में आप देख लें कि थायमीन, एडेनिन, एडेनिन और साइटोसिन तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थायमीन की जगह साइटोसिन ने ले ली, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, के थायमीन की जगह साइटोसिन ने ले ली, सब्स्टिट्यूशन कर ली, राइट। तीसरा अगर हम एग्जांपल ले लें, दैट इज इंसर्शनल और एडिशनल म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल ओरिजिनल सीक्वेंस होता है डीएनए का, तो उसमें कोई एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नॉर्मल या ओरिजिनल में थायमीन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन और थायमीन है। बट इफ यू सी वाल इन द डायग्राम, तो म्यूटेटेड फ्रेगमेंट में एक एक्स्ट्रा साइटोसिन जो है वो आ चुका है। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इट इज कॉल्ड एज इंसर्शनल और एडिशनल म्यूटेशन, राइट। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल स्टडी करें टाइप की, तो डिलीशन म्यूटेशन जिस तरह डायग्राम में भी हमने ऑब्जर्व किया, द पॉइंट म्यूटेशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू लॉस और डिलीशन ऑफ सम पोर्शन, that is single nucleotide or pair in a triplet codon of a gene, and that's called as deletion mutation. Substitution mutation, a point mutation in which a nucleotide of a triplet is replaced by another nucleotide, जो दूसरे डायग्राम में हमने ऑब्जर्व किया। Insertion or additional mutation, the mutation, this type of mutation, it occur due to an extra nucleotide which is getting added to the normal fragment of DNA, और इन तीनों को हमने डायग्राम में ऑब्जर्व किया, दोबारा भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के बाद हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की तरफ आ जाते हैं। द चेंज इन द जीनोम इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम पार्ट्स, whole chromosome or the whole chromosome sets, that's called as chromosome aberration or chromosome mutation. अच्छा, अब इसको फर्दर हम दो में क्लासिफाई करते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को पहले ले लेते हैं और इसके सब टाइप्स पढ़ते हैं। Change in structure of chromosome, that type of mutation which is involving change in structure of chromosome is called as what? Chromosomal aberration भी इसको हम कहते हैं। Now, such type of mutation can further be classified into deletion, addition, inversion or rotation and translocation. इसमें भी सबसे पहले अगर हम डायग्राम की तरफ आ जाएं तो डिलीशन। अब हमारे पास ये अगर एक नॉर्मल क्रोमोसोम है,
तो इस क्रोमोसोम का अगर कोई फ्रैगमेंट कट जाए या ब्लॉक ऑफ जीन कट जाए इससे, तो दिस इज कॉल्ड एज डिलीशन, कि ये तो क्रोमोसोम है लेकिन क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो कट गया है, ये लॉस कर गया है। और यू कैन सी कि फिर जो म्यूटेटेड क्रोमोसोम है, यू कैन ऑब्जर्व कि इससे कोई फ्रैगमेंट कट गया है, मीन दिस फ्रैगमेंट इट हैज बीन लॉस्ट। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहते हैं डिलीशन। दूसरा डुप्लीकेशन क्या है कि ये हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम तो है लेकिन इसी तरह का कोई दूसरा फ्रेगमेंट आके इसमें एडिशनली इंसर्ट हो जाता है। तो इस एक फ्रेगमेंट को अगर हम ले रहे हैं, इसकी रेपिटेशन हो जाती है या डुप्लीकेशन हो जाती है। तो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन, के नॉर्मली तो ये फ्रेगमेंट ऑलरेडी एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है लेकिन एक एडिशनल फ्रेगमेंट आ जाता है क्रोमोसोम में और वो डुप्लीकेशन काज करता है। नेक्स्ट डायग्राम में यहां पे अगर हम ले लें, दिस इज शोइंग द इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल क्रोमोसोम in which the sequence of gene they are such as A, B, C, D, E, F, G, H. Suppose इस क्रोमोसोम में A से H तक जीन है जिसकी प्रॉपर अरेंजमेंट है। अब क्या होगा कि इन्वर्जन में एक फ्रेगमेंट ऑफ या ब्लॉक ऑफ डीएनए कट जाता है क्रोमोसोम से, वो 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है, यानी अपसाइड डाउन हो जाता है और फिर उसी जगह पे जहां से वो कट गया है वापस उसी क्रोमोसोम में एंटर हो जाता है, लेकिन इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है जीन का। जिस तरह नॉर्मल में आप देख रहे हैं कि A, B, C, D, E, F, G, H है, तो म्यूटेटेड में यू कैन सी कि A, B, C, तो अब D, E, F की बजाय ये अपसाइड डाउन है F, E, D, G, H। तो इन्वर्जन भी एक म्यूटेशन है कि जिसमें जीन की रीअरेंजमेंट चेंज हो गई, राइट। नेक्स्ट डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? अच्छा, नॉर्मली हम कहते हैं ना यूसी के ये एक क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस पेयर है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 का होमोलोगस पेयर है, ठीक है। अब अगर क्रोमोसोम नंबर 1 को हम ले रहे हैं कि ये होमोलोगस पेयर है, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान अगर एक्सचेंज ऑफ फ्रैगमेंट हो ना, तो इट्स कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। दिस इज नॉर्मल, जो कि मायोसिस में होता है। लेकिन अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम नंबर 1 का जो होमोलोगस पेयर है वो नॉन होमोलोगस है क्रोमोसोम नंबर 2 के पेयर के लिए, यानी ये दो पेयर क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर और 2 का पेयर वो एक दूसरे के लिए होमोलोगस नहीं है, नॉन होमोलोगस हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 के पेयर के ऊपर अपने अलग से जीन है कैरेक्टर के और क्रोमोसोम 2 के पेयर के ऊपर अपने अलग से कैरेक्टर के जीन है। तो वो म्यूटेशन के जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज ऑफ फ्रैगमेंट करे तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। Translocation is the exchange of fragment of DNA between the non-homologous chromosome, which is then called as mutation. जबकि the exchange of fragment between the homologous chromosome, अब अगर 2 क्रोमोसोम का homologous pair है वो आपस में अगर exchange of fragment करते हैं तो it's okay, this is crossing over। लेकिन जो non-homologous chromosome आपस में exchange of fragment करे तो this is called as ट्रांसलोकेशन। जी, इसको हम लिटरेचर में देखते हैं, स्टडी करते हैं। डिलीशन, इट इन्वॉल्व लॉस ऑफ अ ब्रोकन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, जो हमने डायग्राम में ऑब्जर्व किया, डिलीशन। एडिशन, डुप्लीकेशन व्हिच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आर पार्ट ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज शोइंग द रेपिटेशन। देन जो डायग्राम में हमने अभी ऑब्जर्व भी किया, यू कैन सी दिस वाज डिलीशन एंड दिस वाज डुप्लीकेशन। Now, inversion or rotation. Rotation, a group of gene at 180 degree within the chromosome is called as inversion. इसमें हमने डायग्राम में देखा कि कोई फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो कट जाता है क्रोमोसोम से, वो 180 के डिग्री पे ट्विस्ट लेता है, यानी अपसाइड डाउन हो जाता है और फिर उसी जगह पे वापस इंसर्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। लेकिन इसमें भी जीन की रीअरेंजमेंट चेंज हो गई, दैट्स व्हाई इट इज म्यूटेशन। सॉरी। ट्रांसलोकेशन
The exchange of parts, the exchange of fragment between the non-homologous chromosome is called as translocation, in which the broken segment it become attached to a non-homologous chromosome, resulting in new linkage relations. के अब homologous pair नंबर 1 सपोज उसमें अलग टाइप के जीन है और 2 में अलग टाइप के जीन है, तो इस तरह जो इनका आपस में रिलेशनशिप होता है, लिंक, वो हैम्पर्ड कर जाता है या चेंज हो जाता है. ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. एक था ना चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हमने डिलीशन, एडिशन और ट्रांसलोकेशन और इसके अलावा दैट वाज बेसिकली इन्वर्जन को पढ़ा. लेकिन अभी हम बात करेंगे कि अगर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए. चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 टाइप का होता है. एक वो जिसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, के सपोज कोई इंडिविजुअल है, उसमें नॉर्मली 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के, जिस तरह ह्यूमन बीइंग में 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के और हर एक सेट में 23 क्रोमोसोम है. तो 23 क्रोमोसोम एक सेट में है, 23 दूसरे सेट में है. तो अगर एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाएं तो उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी. यानी पूरे सेट में अगर एक या 2 क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. और यूप्लॉइडी क्या है कि जिसमें पूरे का पूरा सेट, एक एक्स्ट्रा सेट उसमें ऐड हो जाए या कम हो जाए नॉर्मल से, तो दैट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी. इसको डायग्रामेटिकली भी हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सी, पहले हम एन्यूप्लॉइडी को लेते हैं. इट इन्वॉल्व द लॉस और गेन ऑफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम सेट. यानी पूरे जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं उसमें से कोई एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाते हैं. It refers to the condition in which one or few chromosome they are added or deleted from the normal chromosome number, and hence the number of chromosome in aneuploidy can be greater or smaller than the number of chromosome in the wild type, mean के in the normal type. कि जो नॉर्मल टाइप ऑफ इंडिविजुअल होता है उसको अगर हम ऐसे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करें जिसमें एन्यूप्लॉइडी हुई है कि कोई 1 या 2 क्रोमोसोम ज़्यादा या कम है. वेरियस टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी कैन बी आइडेंटिफाइड एज नलीसोमी, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी. इसमें भी पहले ज़रा हम डायग्राम की तरफ चले जाते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर ये थ्योरी की तरफ आते हैं. जी, सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट और दूसरा. और आप देख सकते हैं कि एक सेट में भी 3 क्रोमोसोम है और दूसरे में भी 3 क्रोमोसोम है. सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, वी आर सेइंग. अच्छा, अब ये नॉर्मल डाइसोमी है कि जी उस ऑर्गेनिज्म में नॉर्मली 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 1 सेट अनदर सेट, और हर एक सेट में 3 क्रोमोसोम है, 1 2 3, राइट, और 1 2 3. अब नलीसोमी क्या है कि जो लास्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, यानी फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, जो थर्ड पेयर है, तो वो दोनों के दोनों मिसिंग है. तो इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, 0. नलो का मतलब है 0. तो यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है. इस टाइप के म्यूटेशन को, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम कहते हैं नलीसोमी, राइट. ये दूसरी एग्जांपल में आप देखिए मोनोसोमी कैसे हैं. मोनोसोमी के नॉर्मली इस इंडिविजुअल के हर एक सेट में 3 क्रोमोसोम है. इसके एक सेट में तो 3 नॉर्मल क्रोमोसोम है, लेकिन दूसरे सेट में एक क्रोमोसोम मिसिंग है यहाँ पे. तो यू कैन सी के 3rd नंबर का जो क्रोमोसोम है उसका एक तो है, लेकिन पेयर का दूसरा क्रोमोसोम मिसिंग है, तो सिंगल रह जाता है ना. इसको हम कहते हैं मोनोसोमी. मोनो तो 2n इसका नॉर्मल नंबर है सेट का, लेकिन 2n-1 क्यों लिखते हैं कि इसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है, तो -1. यहाँ पे 2n-2 क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, लेकिन इन दोनों सेट का जो थर्ड क्रोमोसोम है वो मिसिंग है. तो 2n-2 के 2n 2 सेट्स तो हैं, लेकिन उसमें से 2 क्रोमोसोम मिसिंग है. जी, नेक्स्ट अगर आप डायग्राम में देखें तो नॉर्मली हम बार बार कहते हैं कि सपोज इस ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 1 और 2.
हर एक सेट में 3-3 क्रोमोसोम है, लेकिन इसके क्रोमोसोम नंबर 1 के पेयर पे आप देखिए तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है। इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। 1 2 3 के क्रोमोसोम नंबर 1 पे ये ट्राइसोमी शो करते हैं। इसको जब अगर देखा जाए तो नॉर्मली इस इंडिविजुअल में 6 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लिए तो 7 हैं। इसका मतलब है कि एक इसमें एक्स्ट्रा है। और कौन से पॉइंट पे? फर्स्ट पेयर के पॉइंट पे। तो when we are just presenting it, that's 2n plus 1. Why? Because this one is extra over here, which is at pair number 1. टेट्रासोमी यू कैन सी नॉर्मल 2 सेट्स तो है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 और एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n जो कि नॉर्मल सेट है प्लस 2 के 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस सेट में है। किस पॉइंट पे? दैट इज ऑन द क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पेयर जी। नलीसोमी, जिस तरह डायग्राम में भी हमने देखा कि 2n-2 से हम इसको शो करते हैं, इट्स द लॉस ऑफ बोथ द क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर, और दिस कंडीशन इट मे बी लीथल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मोनोसोमी, इट इज 2n-1 एंड इट्स द लॉस ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम ऑफ अ होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम इसमें मिसिंग होता है। यहाँ पे होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम मिसिंग है जी। फिर ट्राइसोमी 2n+1, इट्स द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल 2n+1। और अगर ह्यूमन में हम इसको ले लेना कि ह्यूमन में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाए तो फिर दैट इज आल्सो शोइंग ट्राइसोमी। और इसकी हमारे पास एग्जांपल है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी शो करते हैं लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के पेयर के पॉइंट पे, और डाउन सिंड्रोम भी ट्राइसोमी को शो करते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को शो करते हैं, लेकिन वो सोमैटिक क्रोमोसोम है। लेट्स सी यहाँ पे अगर आप देख लें, ओके, डाउन सिंड्रोम में ये पूरा कैरियोटाइप है या टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ये शो कर रहे हैं ह्यूमन के, लेकिन डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम पेयर नंबर 21 है ना होमोलोगस, उसमें नॉर्मली 2 होने चाहिए ना क्रोमोसोम, लेकिन इसमें 3 आ जाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब आ जाता है तो वी कॉल इट, और ये कौन से 21st होमोलोगस पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 1 2 3 नॉर्मल 2 की बजाय यहाँ पे 3 क्रोमोसोम हैं, तो दिस इज ट्राइसोमी। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लेनफिल्टर सिंड्रोम की, तो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में क्या सिचुएशन है कि 2 X और 1 Y है। नॉर्मली एक मेल में, ह्यूमन के मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं ना, सेक्स, तो इसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। इसका मतलब है कि सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है इसमें भी ट्राइसोमी को शो कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं कि नाउ दिस इज द क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जी। टेट्रासोमी क्या है? The addition of a pair of homologous chromosome in the diploid set, it is called as tetrasomy जी। जिस तरह डायग्राम में हमने ऑब्जर्व की कि 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक होमोलोगस पेयर के पॉइंट पे आ गए, यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व के दिस इज के फर्स्ट जो होमोलोगस पेयर है उसके साथ 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गए हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे इस पॉइंट पे 4 क्रोमोसोम है, इसलिए इसको टेट्रासोमी कहते हैं जी। नेक्स्ट यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या है? इट इन्वॉल्व्स द लॉस और गेन ऑफ द होल क्रोमोसोम सेट, पूरे का पूरा सेट ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द बेसिक सेट इट इज कॉल्ड एज मोनोप्लॉइड एंड दैट नंबर इज X. Those euploid type whose number of set is greater than 2 they are called as polyploid. के नॉर्मली हम कहते हैं कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं तो वो अगर 2 है तो डिप्लॉयड है, नॉर्मल अगर 2 है तो डिप्लॉयड है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग में हम लेते हैं कि नॉर्मल डिप्लॉयड है। इसी तरह प्लांट में अगर हम ले लें तो नॉर्मल प्लांट कुछ ऐसे हैं जिनमें डिप्लॉयड है। अच्छा, यूप्लॉइडी जो है वो ह्यूमन में नहीं होता, बल्कि ये कॉमन है प्लांट में, और अगर हम ले लें तो बहुत से पॉलीप्लॉइड प्लांट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और वो कैसे डेवलप होते हैं, लेट्स सी के फॉर एग्जांपल वो X इट इज द मोनोप्लॉइड सेट, 2X इज द डिप्लॉइड सेट,
और पॉलीप्लॉइड की तरफ अगर हम जाएं तो वो 3 सेट्स भी हो सकते हैं, 4 सेट्स भी, 5, 6 एंड सो ऑन। तो उसके बेस पे इसको नाम दिया गया है ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। जिस तरह अगर हम इस सेट में नॉर्मली देखते हैं ना, तो पेरेंट में 2 सेट्स हैं डिप्लॉइड जी। और यहाँ पे अगर हम देखें कि सपोज इस पेरेंट में म्यूटेशन हुई थी तो इसके 2 के बजाय 4 सेट्स हैं क्रोमोसोम के। तो इफ़ यू सी ओवर हेयर, अब यहाँ पे अगर हम किसी फीमेल को लेते हैं और उस फीमेल में क्रोमोसोम के सेट 4 हैं तो दैट इज़ टेट्राप्लॉइड, और मेल को लेते हैं कि उसमें नॉर्मल 2 सेट हैं तो दैट इज़ डिप्लॉइड। फिर जब ये गेमीट्स बनाएंगे तो मेल के गेमीट में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा, जबकि फीमेल के गेमीट जब बनेंगे तो उसके हर एक गेमीट में 2-2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। तो एज अ रिजल्ट जब इन दोनों के जर्म सेल की फ्यूजन होगी या फर्टिलाइजेशन होगी तो यू कैन सी के जो प्लांट आएगा दैट वुड बी ट्रिप्लॉइड, कि उसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ओके, mutation due to euploidy, it refers to the state of having a chromosome number that is an exact multiple of the basic chromosome set. This means that the number of chromosome set it is increased in euploidy. Polyploidy अगर हम ले लेना, polyploidy का मतलब है कि सपोज नॉर्मल यहाँ पे 2 सेट हैं इस फॉर एग्जांपल प्लांट में, तो अगर उस प्लांट में 2 सेट की बजाय 3 सेट हो जाएं, यानी पूरे का पूरा सेट बढ़ जाए, तो दैट इज ट्रिप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी है, लेकिन पॉलीप्लॉइडी में भी 2 से ज़्यादा हो तो ट्रिप्लॉइडी, फिर 2 से ज़्यादा यानी 2 और एक्स्ट्रा हो तो टेट्राप्लॉइडी, जिसमें 5 हो तो पेंटा, जिसमें 6 हो तो हेक्सा एंड सो ऑन। तो इसमें पूरे के पूरे सेट का इंक्रीज या डिक्रीज होना है। ओके, नाउ म्यूटेजेंस क्या है? क्योंकि म्यूटेशन होती हैं ड्यू टू म्यूटेजेंस, तो व्हाट आर द म्यूटेजेंस? लेट्स सी। म्यूटेजेंस, दे आर द केमिकल कंपाउंड आर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन सच एज ultraviolet light or X-rays that cause irreversible and heritable mean which can be transmitted to the progeny. Okay, changes, mutation in the cellular genetic material that is deoxyribonucleic acid. के अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाएं और वो चेंज प्रोजेनी को ट्रांसमिट हो सके तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। और हम कहते हैं कि जी ये म्यूटेशन इट कैन बी इंड्यूस्ड और इट मे बी ड्यू टू इवन इन नेचुरल इन्वायरमेंट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है या एक्सरेज हैं या कुछ केमिकल्स वगैरह है। तो व्हाट आर म्यूटेजन? म्यूटेजन्स दे आर दो सब्सटेंस व्हिच आर कॉजिंग म्यूटेशन, राइट। टाइप्स ऑफ म्यूटेजन. Mutagens can be classified into 3 types on the basis of their origin: physical mutagen, chemical mutagen और एक हमारे पास है biological mutagen। जी, physical mutagen को ले लेते हैं। Physical mutagen usually include ionizing radiation such as X-rays, gamma rays, UV radiation, ultraviolet radiation, etc. Natural or spontaneous mutation, it is caused by cosmic rays which are coming from the sun, and they occur in small amount in the environment and are known as background radiation. These radiation, it causes breaks in the chromosome, which then show abnormal division and causing cancer. Ultraviolet rays affect the structure of the DNA helix and also affect the replication process, and all these are leading to what? Mutation. Now, chemical mutagen. Elements such as arsenic, nickel, and chromium, they are considered to be mutagens. Some organic compound like nitrous acid, and beside this formaldehyde, mustard gas, 5-bromouracil. 5-bromouracil is a base which is analog of thymine, which can be incorporated into the DNA, and it's a well-known mutagen, causing what? Transition mutation by mispairing with the guanine rather than pairing with adenine. That is occurring while during the replication process. Besides this, some other mutagen, chemical mutagen may include acridines, colchicine, edible dyes, caffeine, nicotine,
food preservatives, they are also considered to be the mutagenic in nature. Pesticides, colchicine, induced polyploidy, etc. The first chemical mutagen which was discovered was mustard gas, and which was used as a weapon by the German army in 1917 in First World War. These were basically the mutagen which were physical and chemical. Besides this, some of the mutagen may be biological, which consist of certain viruses and bacteria which are causing mutation. So in today's topic, what we discuss about the what mutation. We did define mutation, we did define the chromosomal mutation, and beside this genetic mutation, gene mutation was basically that which was just change in a single nucleotide, which was also called as micromutation, and that was point mutation as well. And that we discuss about the deletion, substitution, insertion. Then we discuss about the chromosomal mutation. लेकिन chromosomal mutation में जो change in structure था, तो उसमें भी हमने deletion, addition, inversion और ट्रांसलोकेशन को डिस्कस किया डायग्रामेटिकली भी. फिर चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में हमने दो तरह के डिस्कस किए. एनियूप्लॉइडी, जिसमें के पूरे क्रोमोसोम के सेट में कोई एक दो क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाए, और यूप्लॉइडी जो कि प्लांट में कॉमन है, तो इसमें पूरे का पूरा जो सेट है क्रोमोसोम का वो ज़्यादा या कम हो जाता है. राइट तो अगर ज़्यादा हो जाए देन दैट ऑफ द नॉर्मल टू सेट्स, तो इसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी. देन वी डिस्कस अबाउट द म्यूटेजन. वी डिड डिफाइन दैट व्हाट इज म्यूटेजन, दोज एजेंट विच इज काजिंग म्यूटेशन. इसमें हमने फिर फिजिकल और केमिकल म्यूटेजन को थोड़ा डिस्कस किया. लेट्स सी इंशाल्लाह वी वुड बी हैविंग अनदर टॉपिक while in our next lecture. Till that, Allah Hafiz.